So in the last class, we have done the pollination. We have completed. All right. We have done the pollination which has been completed. वो हमने यहाँ पे देख लिया था. We have done the pollen pistil interaction which we have seen. So आज के क्लास के अंदर we will try to understand something beyond that. So अब यहाँ पे हम fertilization की बात करेंगे. So आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा to understand everything in terms of fertilization and along with that to solve as many as question as possible in terms of fertilization. ये दो चीजें आज हम करेंगे. We try to solve a bulk of question based on fertilization because fertilization वाले टॉपिक्स आपके क्वेश्चन बन के आते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं. So we'll try to solve many questions and along with that we'll try to see certain topics over here. Okay. So in the last class, these are the questions we have done in the last class. Let me start the screen share. I guess मेरी screen आप सबको यहाँ पे दिख रही है. अगर कोई किसी को screen ना दिख रही हो, then please let me know if at all that happens. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया था. This is something we have seen. We have solved some questions. And we have done the pollen pistil interaction हमने कर लिया था. We have done the artificial hybridization भी हम वहाँ पे देख चुके हैं. So now let's start with my fertilization. Without wasting any time, let's start with the fertilization. So जब हम fertilization की बात करते हैं तो right from the beginning what we have done, we have formed the male gametophyte हमने बना लिया था. That's a pollen grain. हमने female gametophyte भी बना लिया था हमारे यहाँ पे. That's your embryo sac, right? So microsporogenesis करके we have made our male gamete ultimately. Pollen grain will have the male gametes. Megasporogenesis करके हमने हमारा female gamete भी बना लिया था. That was our egg. Okay, and the female gamete and male gamete will fuse to form the zygote. So that is what we know. That simply आपका जब हम fertilization की बात करते हैं, so your male and female gamete will fuse and give rise to the zygote. That is something we are familiar with. Okay. Now there is one thing I want to tell you all of you that whenever we discuss about the fertilization, so what do we get to see now? Yeah, what do you get to see? Assume that this is my embryo sac. Assume that this is my embryo sac over here. ये मेरा embryo sac है. ये pictures आप already आप वाकिफ हो. I'm just going to give you a quick revision of this. You have in the center you have your two polar nuclei. You have these two polar nuclei in the center, which are going to be haploid in nature, right? यहाँ पे आपके पास आपको मिलेंगे. यहाँ पे will have your synergid cells. You have your synergid cells over here. Right, these are going to be also going to be haploid. Right. Along with that, you are also having something like my egg. जो आपका main यहाँ पे आपका female gamete था, that was your egg. So you also have the egg over there. So this is going to be my egg. So what you have to understand here is कि जब आपकी pollen tube यहाँ पे अंदर आती है, so basically when the pollen tube is going to enter inside the embryo sac, so when the pollen tube is going to enter inside the embryo sac, ना जब आपकी pollen tube अंदर आएगी, so first thing you have to know that your synergid cell have to die. Your synergid cells जो आपके यहाँ पे होंगे, they have to end up, they will degenerate basically, okay? And this pollen tube जो आपके यहाँ पे अंदर आ रही है, the pollen tube which is entering inside right now, this pollen tube will be having, इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके male gametes. So let's make a male gamete of green color के बना देते हैं हम यहाँ पे. So they will have the male gametes over here, right? So they will have like one male gamete and two male gametes. So you'll have two male gametes will be seen inside this pollen tube. You will have this male gametes. याद रखना हमेशा you will have two male gametes. Okay. अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि now assume that my pollen tube has entered inside, my synergid cell will end up dying. Basically दोनों की बाद में डेथ हो जाएगी. अभी तो एक ही है, but we will find both of them will ultimately die. So your synergid cell will get degenerated over here. And later on what will happen, your male gametes are getting released. आपके जो male gametes आपके यहाँ पे होंगे, ये आपके यहाँ पे release कर दिए जाएंगे. Now assume that the male gamete have entered inside the embryo sac. तो आपको याद रखना है that one of the male gamete will go and fuse with the polar nuclei. So one of the male gamete will go and fuse with the polar nuclei. So that is why male gamete fusing the polar nuclei. And another male gamete will come and fuse with my egg. जो दूसरा male gamete यहाँ पे मेरा होगा, this will come and fuse with my egg. So that is what you find happening over here. कि यहाँ पे आपका male gamete जाके आपका fuse कर रहा है polar nuclei के साथ. So this over here is my polar nuclei. And polar nuclei के साथ जाके मेरा attach करेगा मैंने यहाँ पे male gamete. On the other hand, the other male gamete will come and fuse with my egg. तो आपको इतनी चीज याद रखनी है कि male gamete कहाँ पे जाके आपका fuse कर रहा है. And this story of fusion of my male gamete with the polar nuclei and the fusion of male gamete with the egg, this is collectively called as my double fertilization. So यहाँ पे आपका double fertilization आपको हो रहा है, which you all are familiar with. याद रखना, your synergid cell will be removed. इनको आप निकाल देते हो यहाँ से, they won't be there for long.
दे विल डीजनरेट आफ्टर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब मेरा मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है पोलन न्यूक्लिया के साथ, लेट मी जस्ट गिव अ मैग्निफिकेशन ओवर हियर। सो यू हैव दिस पोलन न्यूक्लिया यहाँ पे, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, और आपका मेल गैमेट इसके साथ आके यहाँ पे फ्यूज कर रहा है। सो मेल गैमेट इज कमिंग एंड फ्यूजिंग विद दिस टू पोलन न्यूक्लिया, सो इट इज आल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड ओवर हियर। तो जब ये तीनों आपके यहाँ पे फ्यूज किए जाते हैं, व्हेन यू फाइंड दिस थ्री फ्यूजिंग ओवर देयर, दिस विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ माय प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, that stand for my primary endosperm nucleus आपका पे बनेगा। And this primary endosperm nucleus जो आपका पे बनेगा, whatever the primary endosperm nucleus you are forming over here, this will be triploid in nature। ये आपका यहाँ पे होगा ट्रिप्लॉइड। इसके ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ ज्यादा बिकॉज यू विल फाइंड इसके ऊपर बेस काफी लाइक घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। सो विल हैव योर मेल गैमेट फ्यूजिंग विद द टू पोलन न्यूक्लिया एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम बोलेंगे वो जो आपका यहाँ पे होगा आपका ट्रिप्लॉइड। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ये आपका इस तरीके से आपका यहाँ पे बन जाएगा। ओके, आपका जब मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज कर रहा है एग के साथ, व्हेन यू हैव अ मेल गैमेट फ्यूजिंग विद द एग, सो व्हेन यू हैव अ एग ओवर हियर एंड व्हेन दिस एग गेट्स फ्यूज्ड विद द मेल गैमेट, जब ये आके आपका मेल गैमेट के साथ यहाँ पे आके इसका ये फ्यूज करेगा, यहाँ पे मेल गैमेट आपका हैप्लॉइड होगा। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय डिप्लॉइड जाइगोट, N+N 2N, so this will lead to formation of my diploid zygote। so ये बनाएगा मेरा यहाँ पे diploid zygote। so आपको याद रखना है कि जब मेरा मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है एग के साथ, that is called as my syngamy, और जब मेरा यहाँ पे पोलर मेरा मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है मेरे यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया के साथ, that is something which will be called as my your particularly that will lead to formation of my primary endosperm nucleus। okay, वहां पे आपका primary endosperm nucleus आपको यहाँ पे बनते हुए आपको मिल जाएगा। So these two events are happening over here। ये दो इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे हैं, एक जगह पे आपके यहाँ पे एंडोस्पर्म आपके यहाँ पे बनाया जा रहा है और एक जगह पे हम बना रहे हैं हमारे यहाँ पे जाइगोट। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। आपको क्लियरली याद रखना है कि हैप्लॉइड है आपका मेल गैमेट और आपके यहाँ पे जो पोलन न्यूक्लिया वो आपके N+N है, सो इट बिकम्स कलेक्टिवली आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म आपका हमेशा बनेगा। दिस इज समथिंग ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद, आई एम जस्ट रिवाइजिंग दोस थिंग्स टू यू अगेन। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। एक बार आपका ये हो गया, दैट मींस आपका फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे हो गया। मैं कहूंगा यहाँ पे दैट माय डबल फर्टिलाइजेशन हैज कंप्लीटेड, माय डबल फर्टिलाइजेशन हैज कंप्लीटेड। सो डबल फर्टिलाइजेशन आपको सिर्फ होते हुए मिलेगा आपके एंजियोस्पर्म के अंदर, याद रखना, यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन द एनी अदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ये सिर्फ आपका एंजियोस्पर्म में होते हुए आपको मिलेगा। सेकंड बात आपको याद रखनी है कि डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यू आर फाइंडिंग दिस अ फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माय प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो एज एंडोस्पर्म व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, जो आपका यहाँ पे होगा ट्रिप्लॉइड। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभी तो आपका ये न्यूक्लियस है, लेकिन बाद में इसको सेल वॉल मिल जाएगी एंड इट विल बिकम अ सेपरेट सेल। बट इनिशियली क्या होता है, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है एंड देन इट विल अंडरगो मल्टीपल टाइम्स माइटोसिस टू इंक्रीज इट्स नंबर, एंड बाद में यू विल हैव अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म विल बी फॉर्म, वो आपका बाद में बनेगा। तो पहले आपको इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। These are the few things first of all you have to know happening over here। एक बार आपके ये इवेंट्स यहाँ पे आपके हो गए, then we can move on to something else। Now let's see यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। One male gamete fused with the egg lead to formation of a zygote, diploid। आपका सेकंड मेल गैमेट जो आपको यहाँ पे था, ये आपका आके फ्यूज करा है पोलर न्यूक्लिया के साथ, that will lead to formation of my endosperm, primary endosperm nucleus। जाइगोट आपका बाद में एम्ब्रियो बनाएगा और आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल अल्टीमेटली फॉर्म द एंडोस्पर्म। अब आपको याद ही रखना है कि जब मेरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और मेरा जाइगोट बनता है, सो माय प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल डिवाइड रैपिडली। ये आपका जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा, सो दिस विल बी डिवाइडिंग रैपिडली, सो दिस विल डिवाइड रैपिडली। सो व्हाट यू हैव टू नो हियर इज कि आपका जाइगोट का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होगा, बट एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आपके यहाँ पे फास्ट होता है। ये करने का रीजन यहाँ पे ये होता है ताकि जब आपका जाइगोट डेवलप कर रहा हो तब आप उसे नरिश कर सको। सी द आइडिया इज, एंडोस्पर्म का एक ही काम होता है, नरिशमेंट ऑफ द जाइगोट। एंडोस्पर्म आपका एक ऐसा टाइप का सोर्स है फूड का, जिसके थ्रू आप जाइगोट को नरिश करोगे, जिसमें से आपका एम्ब्रियो बनेगा। सो द डेवलपिंग एम्ब्रियो नीड्स अ नरिशमेंट एंड दैट नरिशमेंट विल कम फ्रॉम द एंडोस्पर्म। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मेरा एंडोस्पर्म यहाँ पे डिवाइड करे, ग्रो करे काफी फटाफट कंपेयर टू माई जाइगोट, ताकि जाइगोट के पास हमेशा नरिशमेंट के लिए आपका एक सोर्स बना रहे। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। नाउ so after entering the one of the synergate, the pollen tube burst and release the two male gametes into the cytoplasm of the synergates। One male gamete will move forward towards the egg cell की तरफ जाएगा and will fuse its nucleus, thus completing the
सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन। तो सिंगैमी आपके यहाँ पे हो गया, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ माई डिप्लॉइड जाइगोट, समथिंग वी नो दैट, ये आपके यहाँ पे हो जाता है। सो मेल गैमेट प्लस एग विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माई सिंगैमी, दैट्स योर जाइगोट फॉर्मेशन विल हैपन। देन वी हैव द मेल गैमेट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब आपके यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर की यहाँ पे बात की जा रही है। अच्छा, ऑलराइट, ओके। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब आपके यहाँ पे बात की जा रही है आपके यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर की। सो ये जब आपका फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियर के साथ, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपके यहाँ पे बन जाएगा। दिस इज गेटिंग फॉर्म सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। जब आपका दो डिप्लॉइड सॉरी दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर जब आपके कंबाइन करते हैं आपके मेल गैमेट के साथ, दैट इज कॉल्ड एज माय ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे आपका ट्रिपल फ्यूजन भी आपके यहाँ पे हो गया। यू कैन सी दैट, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, यू कैन सी वेरी क्लियरली ओवर हियर दैट you have your two polar nuclei combining with my single male gamete. This condition is called as my triple fusion. तो triple fusion आपके यहाँ पे हो जाता है। So triple fusion आपके यहाँ पे हो गया, सिंगैमी आपका हो गया, which will ultimately give you nothing but your endosperm and your zygote. This event only occurs in my flowering plant. Something you should know that. याद रखना। अच्छा, इसमें एक और बात आप यहाँ पे याद रखना कि ये इवेंट आपको हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। That means your angiosperms. अगर आपसे कोई पूछता है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसे बनता है, सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दिस कैन बिकम अ क्वेश्चन फॉर यू, दैट जिम्नोस्पर्म की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, तो दो चीज आप यहाँ पे याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके अंदर भी एंडोस्पर्म आपको मिलेगा, सो दे विल आल्सो हैव द एंडोस्पर्म, बट एंडोस्पर्म इन द जिम्नोस्पर्म इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। इट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। ये बात पहले आप यहाँ पे याद रखो। सेकेंड बात याद रखना, दैट एंडोस्पर्म इज फॉर्म before fertilization. So endosperm is getting formed. So endosperm formation happens. Endosperm is formed before fertilization. So fertilization होने के पहले ही आपका एंडोस्पर्म आपका बन जाता है। ठीक है, सो एंडोस्पर्म आपका पहले ही बना के रख देता है, एंड देन बाद में आपका मेल गैमेट आता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। ये कई बार आपके सामने एज अ स्टेटमेंट आ सकता है। सो याद रखना, एंडोस्पर्म आपका बनता है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के, आपका हैप्लॉइड होता है एंड इट इज फॉर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कोई डबल फर्टिलाइजेशन वाली बात यहाँ पे नहीं करनी है आपने, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच वोंट बी हैपनिंग ओवर हियर। डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म इन एम्ब्रियो, मैच्योरेशन ऑफ द ओव्यूलेटरी सीड। सो एक बार आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद कुछ अलग नहीं होगा। यू विल फाइंड कि आपका एंडोस्पर्म आपका बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनाया जाएगा, योर ओव्यूल विल अंडरगो मैच्योरेशन इनटू द सीड, और जो ओवरी यहाँ पे होगा दैट विल टर्न इनटू द फ्रूट। दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन। इन सारे इवेंट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो जायगोट विल अंडरगो माइटोसिस, विल फॉर्म द एम्ब्रियो, एंड एंडोस्पर्म तो आपको यहाँ पे डेवलप करेगा ही, एंड दीज आर ऑल कॉल्ड एज माय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अलोंग विद द सीड फॉर्मेशन एंड द फ्रूट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका सीड बनेगा, देन यू विल फाइंड द ओवरी विल टर्न इनटू द फ्रूट। सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। The product of triple fusion and develops from a central cell of the embryo sac, that is your endosperm. Okay, it is generally triploid tissue. The cell of this tissue are filled with a reserve food material. याद रखना, एंडोस्पर्म के अंदर आपको मिलेगा आपका रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, एंड ये रिजर्व फूड मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। दिस विल बी यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो टू ग्रो इटसेल्फ। अब इसमें आपको एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग ओवर हियर, दैट जब भी आप यहाँ पे एंडोस्पर्म की बात करते हो, whenever you talk about the endosperm, so initially you have a primary endosperm nucleus. Assume that कि मेरा यहाँ पे primary endosperm nucleus मेरे यहाँ पे ready है. So this is my primary endosperm nucleus. अब ये करेगा multiple times mitosis, और ऐसे कई सारे nuclei आपके यहाँ पे बन जाएंगे. So in a matter of some time you will have multiple nuclei will be formed. तो कुछ टाइम के अंदर you will have a large number of primary endosperm nucleus आपके यहाँ पे बनेंगे आपको यहाँ पे। जब ऐसा होता है ना, जब इनिशियली यू फाइंड दिस हैपनिंग, दिस इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बाद में क्या होगा, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, दीज न्यूक्लियर विल गेट देयर सेल वॉल, दीज न्यूक्लियर विल गेट देयर ओन सेल वॉल and they will become a distinct cell. So बाद में क्या होता है, they can become a distinct cell. So later on, initially you have a nuclear endosperm, but later on they can get their own wall formation. I think someone has अच्छा थोड़ा slow. Okay, all right, got it. ठीक है, slow कर देते हैं. All right, ठीक है. Okay. अच्छा, इसमें से कुछ रिपीट करना तो बता दो मुझे यहाँ पे। ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट यहाँ पे रिपीट करना हो, या कोई चीज जल्दी में आगे निकल गई तो बता दो, रिपीट करना हो तो। एनीथिंग? मेरिटरी स्कूल जलंधर,
इफ देयर इज समथिंग व्हिच यू वांट टू रिपीट देन या लेट मी नो। किसी को कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली चीज ना, हाँ ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं आपसे कि जब आपका एंडोस्पर्म आपका बन गया, आपका एम्ब्रियो बन गया, राइट, मतलब आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल नाउ टर्न इनटू द एंडोस्पर्म। उसी तरीके से मेरा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म मेरा जो ज़ायगोट था दैट विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो। ओके, जब आपका यहाँ पे ये हो रहा है उसके साथ साथ आपका जो ओव्यूल होगा ना, द ओव्यूल यू हैव व्हिच विल टर्न इनटू द सीड, वो आपका सीड बन जाएगा। और आपका जो ओवरी होता है प्लांट के अंदर दैट विल टर्न इनटू द फ्रूट। ये जो इवेंट्स मेरे यहाँ पे हो रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वी कॉल देम एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो आपका एंडोसोम जब आपका बनने लगता है, आपका एम्ब्रियो जब डेवलप करने लगता है, वहां पे पहले जायगोट था, देन अब एम्ब्रियो बनेगा। अब जायगोट से एम्ब्रियो बनने वक्त की जो जर्नी होती है वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। यू विल हैव अ जायगोट एंड दैट जायगोट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस। अब इसके अंदर आपका होगा माइटोसिस और ये ग्रो करेगा। तो जब इसके अंदर माइटोसिस होता है तो ये ग्रो करता है एंड देन इट विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो। ये जो भी आपके इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये आर हैपनिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सब इवेंट्स आपके यहाँ पे होंगे। उसी तरीके से जो आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था दैट विल डेवलप, ये ग्रो करेगा एंड देन अल्टीमेटली विल फॉर्म द एंडोस्पर्म, विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म। तो ये जो सारे इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे हैं, समवन हैज अ क्वेश्चन क्या, राइट, दिस इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन दिस। ठीक है, चलो ये आपके यहाँ पर है। तो आपको मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि पहले आपका जो एंडोस्पर्म बनता है दैट्स अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और बाद में क्या होगा, दिस all the nuclei will have their own cell, they will become a distinct cell, they'll get their own walls and they can become a distinct cell। जब इनके distinct cell ये बन जाते हैं, जब इनको खुद की wall मिल जाती है, then we can call it as a cellular endosperm, then we can call them as a cellular endosperm। तो पहले आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है एंड देन यू विल फाइंड कि आपका दे विल गेट देयर ओन सेल वॉल एंड देन वी कैन कॉल देम एज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये आपका बाद में आपका इवेंट आपका यहाँ पे होता है, राइट। So this is what you find happening and that is how the endosperm is getting formed। एंडोस्पर्म के बारे में इतनी बात रखना, दो चीज, ट्रिप्लॉइड होता है ये, एंड सेकंड काम इसका आपको याद रखना है, नरिशमेंट ये प्रोवाइड करेगा। सो मैच्योर सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब आपके जो मैच्योर सीड होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ये वो सीड होते हैं जिनके अंदर आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा बिकॉज एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया गया है बाय द एम्ब्रियो। सो सच सीड्स आर कॉल्ड एज माय नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सीड लाइक माय ग्राम, पी एंड ग्राउंडनट, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। द एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, thus the seeds are called as my non endospermic और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एज अ नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, हम यहाँ पे इन्हें बोलते हैं, लाइक इन योर ग्राम, पी एंड ग्राउंडनट। सिमिलरली यू विल हैव योर एंडोस्पर्मिक सीड। ये वो मेरे यहाँ पे सीड होंगे जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, दैट इवन आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो आपको थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इवन आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो यू विल स्टिल हैव थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म वहाँ पे। Such seeds are called as my albuminous seeds or endospermic seed. So in monocots like your castor bean, embryo does not consume all the endosperm. आपका embryo सारे से endosperm को consume नहीं करता, so it persists in the mature seed। वो mature seed में आपको persist छोटे आपको पे मिल जाएगा। Such seeds are called as my endospermic seed और albuminous seed। इसमें आपको थोड़ा बहुत endosperm आपको यहाँ पे दिख जाता है। You can see the examples over here. You can see the examples and I would strongly recommend to follow the examples of the NCERT। जितने भी एनसीईआरटी के आपके एग्जाम्पल होंगे उनको आप वहां पे फॉलो करना है। ओके, अगर कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल अगर आपका आ रहा है देन यू कैन इग्नोर दैट, ओनली फॉर द एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस एंड देन वी हैव दीस आर द एग्जांपल्स यू कैन गेट टू सी। देन वी हैव टू डिस्कस समथिंग अबाउट माय एम्ब्रियो। अब आपका एम्ब्रियो जब आपके यहाँ पे डेवलप करेगा फ्रॉम द जायगोट, दैट इज माय एम्ब्रियोजेनी। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपका नीट एग्जाम में नहीं आता। नीट एग्जाम के अंदर यू डोंट फाइंड दैट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के ऊपर बेस आपकी डिटेल में सवाल आता है, बट आपको कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। देयर आर सम बेसिक थिंग व्हिच यू हैव टू नो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट अ मैक्रोपाइल, एंड पे आपका डेवलप करेगा ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जायगोट, जस्ट वेट अ मिनट, हां, मोस्ट जायगोट डिवाइड ओनली आफ्टर, आपके मोस्ट जायगोट डिवाइड लेट करते हैं। जब आपका एक सर्टेन अमाउंट का एंडोसोम बन जाता है उसके बाद वो डिवाइड करेंगे, उनका डिवीजन वहां पे आपका स्लो होगा, ताकि आप इंश्योर कर सको कि आपके जायगोट को हमेशा आपका नरिशमेंट मिलता रहे। ओके, दिस इज अडैप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके थ्रू आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो अपना अश्योर्ड न्यूट्रिशन
to the developing embryo. It means the endosperm development precedes the embryo development. ये statement याद रखना. They can become one of the statement of the statement based question. कि endosperm का development पहले होता है compared to the embryo development. So endosperm development precedes the embryo development. Okay. So now let me show you. This is the all the stages of the embryo development. अब ये stages को आप यहाँ पे अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, because you don't find generally question coming based on them in the NEET exam. But कुछ चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है. For example, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ. See, एक एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए embryonal axis. Assume that this is the embryo. And the embryo will have in the center embryonal axis. This is called as my embryonal axis. सेंटर वाले पार्ट को. अब ये मेरा एम्ब्रियोनल एक्सिस मेरा जो यहाँ पे है, यहाँ से मेरा क्या निकल रहा होता है. सो यहाँ से मेरे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको निकलते हुए आपको मिलेंगे यहाँ पे, which are called as my cotyledons. Which are called as your cotyledons. ठीक है. सो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए आपके सामने, these are my cotyledons. अगर दो है यहाँ पे, then you can understand it's my dicot embryo. So these are my cotyledons. अब cotyledons जो मेरे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, याद रखना, they are also consumed by the developing embryo. इसको भी embryo consume कर लेता है बाद में, because they are also source of nourishment. तो मेरे यहाँ पे दो cotyledon मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, so I can clearly say this is my dicot embryo. I can say that ये मेरे यहाँ पे dicot embryo मैंने यहाँ पे बनाया है आपके सामने. Okay. Now what I have to do here is कि मेरे यहाँ पे I can see the two cotyledons over here. Okay. Now what I will find कि जो मेरा यहाँ पे embryonal axis है ना, उसके टिप के ऊपर the upper part, this upper part over here will be called as my plumule. ये जो ऊपर वाला जो मेरे यहाँ पे पार्ट होगा इसका बोलूंगा यहाँ पे as a plumule. Similarly जो मेरा यहाँ पे एकदम बेस पे जो मेरे यहाँ पे रीजन होगा ना, the area at the base, मेरा बेस पे यहाँ पे रीजन होगा, that will be called as my radical. That will be called as your radical. So you have a plumule and at the base you have a radical. अब प्लूम्यूल बेसिकली आपका क्या बनाता है? प्लूम्यूल जो आपका होता है टॉप के ऊपर, एम्ब्रियो के टॉप पे जो आपको प्लूम्यूल आपको जो रीजन मिलेगा, दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ माय शूट रीजन. ये आपका पूरा शूट एपेक्स आपको बना के देगा. सो कंप्लीट शूट फॉर्मेशन विल कम फ्रॉम द प्लूम्यूल पार्ट. और रेडिकल जो आपका यहाँ पे होता है, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द रूट एपेक्स, और आई वुड से इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स. सो कंप्लीट रूट फॉर्मेशन will depend on my radical and shoot formation will depend on my plumule. This will lead to formation of the shoot. So shoot formation आपका plumule करेगा. इतनी बात तो हमने यहाँ पे देख ली, ये तो चलो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप जानते हो. अब एक और बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, there is a area जहाँ पे मेरा embryonal axis है. Embryonal axis के ऊपर वाला जो एरिया होता है up to my plumule, this region over here is called as my epicotyle. This particular region over here is called as your epicotyle. Okay. Similarly, embryonal region से नीचे तक till your radical towards the lower side, from the embryonal axis towards the radical, this area over here will be called as my hypocotyle. This will be called as my hypocotyle. So what is your epicotyle and hypocotyle? It should be clear to you. So the point of the region above the embryonal axis up to your plumule is called as my epicotyle, and the region below the embryonal axis up to your radical is called as my hypocotyle. तो ये दो regions आपको यहाँ पे याद रखने हैं. उसके अलावा ये अगर cotyledons which can be very clearly seen over there. कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही specifically, then you can write down in the chat. I can see that. अगर आपको लग रहा है कि repeat करना है, again that you can write in the chat. I can do that. ठीक है. So these are the labelings which you have to know कि आपका epicotyle कहाँ पे आता है और hypocotyle आपका यहाँ पे कहाँ पे आता है. कई बार हम इसमें confuse हो जाते हैं. So you should know that where the epicotyle will come and where the hypocotyle is going to come. और plumule और radical मेरे यहाँ पे क्या होता है? That is also something you should be very much clear with. Okay. So now let's have a look. A typical dicot embryo consists of an embryonal axis जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे, right, and the two cotyledons. The portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle जो मैंने आपको mention किया था. Anything above the portion of the embryonal axis will be called my epicotyle, which terminates with the plumule, जो आपका end होता है plumule के साथ, stem tip. Okay. Similarly,
द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन इज हाइपोकोटाइल। जो आपका नीचे वाला जो रीजन आपका आता है बेसिकली एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाला जो आपका एरिया यहाँ पे आपका होगा, दैट इज माय हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड टू द रेडिकल, जो आपका वहां पे रूट टिप आपको बना के देगा, जो आपको रूट बना के देगा। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, यू कैन सी द प्लूम्यूल, यू कैन सी द कोटिलेडॉन। ऐसी पिक्चर में कई बार समझ नहीं आता, बट प्लीज नो दैट कि मेरा एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल यहाँ पे कहाँ पे आएगा, सो दैट यू कैन ऑलवेज आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, सो देन यू हैव अ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो हमने यहाँ पे हमारा डाइकोट एम्ब्रियो हमने हमारा देख लिया, एंड हाउ दैट इज गोइंग टू लुक लाइक इज समथिंग वी हैव सीन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मोनोकॉट एम्ब्रियो। जब मैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की यहाँ पे बात करता हूँ, सो आई विल बी फाइंडिंग दैट मोनोकॉट एम्ब्रियो विल हैव अ सिंगल कोटिलेडॉन एंड दैट कोटिलेडॉन इज कॉल्ड एज माय स्कूटेलम। यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल कोटिलेडॉन एंड दैट विल बी कॉल्ड एज माय स्कूटेलम। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इसी पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके अगर आपको बताऊं मैं, सो अज्यूम दैट दिस इज योर एम्ब्रियो और इसके पास आपको होगा एक सिंगल कोटिलेडॉन आपको मिल जाएगा, एंड दैट सिंगल कोटिलेडॉन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्कूटेलम। दिस विल बी कॉल्ड एज योर स्कूटेलम। यहाँ पे जिन चीजों पे आपको फोकस करना है वो आपका ये है दैट यू विल हैव अगेन somewhere over here you can have a plumule, somewhere over here you will have a plumule। यहाँ पे कहीं पे आपको plumule भी आपको मिलेगा, so this will also have a plumule, and somewhere in the base you will also have your radical, जो यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ, like radical लेबल किया हुआ है, plumule यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ, but you will find a plumule and the radical over here। अब plumule के आसपास आपको एक यहाँ पे जो sheet like covering जो मिल रही है, you can see the sheet like covering over here। ये sheet like covering जो आपको यहाँ पे दिखेगी, that sheet like covering is called as my कोलियोप्टाइल। तो याद रखना ये जो मेरा प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल के आसपास यू हैव अ शीट लाइक कवरिंग एंड दैट शीट लाइक कवरिंग हियर इज कॉल्ड एज माय कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो शूट वाले पार्ट के ऊपर जो आपको शीट लाइक कवरिंग आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड एज माय कोलियोप्टाइल। और उसी तरीके से जो मेरा रेडिकल है, रेडिकल के आसपास जो आपको यहाँ पे शीट वाली जो आपको कवरिंग यहाँ पे मिल रही है, यू हैव दिस कवरिंग ओवर हियर नियर बाय द रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एज माय कोलियोराइजा। दिस इज कॉल्ड एज माय कोलियोराइजा। तो ये दो पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखना, जनरली इसके ऊपर बेस्ड आपके सवाल आते हैं दैट वेयर इज माय कोलियोप्टाइल एंड वेयर इज माय कोलियोराइजा, या वो किस चीज को कवर कर रहे होते हैं। सो दिस शीट लाइक कवरिंग is going to cover, coleoptile will cover the plumule wala part and coleorhiza is going to cover the radical wala part, and you have a single cotyledon which is going to be called as my scutellum. So this is what we have to know in this. Okay, so there's something I have already explained you over here, right? You have a single cotyledon called as my scutellum जो आपका laterally placed होता है of the embryonal axis. At a lower end the embryonal axis has a radical and the root cap is enclosed in an undifferentiated sheath। एक undifferentiated sheath आपके यहाँ पे होती है which is called as my coleorhiza। Similar portion I will also find covering your upper part। Epicotyle has the shoot apex and a few leaf primordial enclosed in an hollow follicular structure called as my coleoptile। So basically आपका जो shoot apex का जो part होता है जहाँ पे आपको plumule भी मिलेगा, that area is being covered by this follicular structure called as my coleoptile। So this coleoptile and coleorhiza का location आपको यहाँ पे याद रखना है, and what they are basically doing, they are actually working as a protective structures over there। The outer covering of the endosperm। हाँ, अब एक बात यहाँ पे याद रखना, this one thing I want to tell you। Assume that this is my endosperm। Assume that ये मेरा यहाँ पे endosperm है। Okay, आप लोग जानते हो कि मेरा endosperm जो यहाँ पे होगा that will be triploid in nature। You know that endosperm is also going to be triploid in nature। Endosperm की एक outer layer आपको मिल जाती है। So endosperm की एक outer layer आपको मिलेगी यहाँ पे, and this outer layer of endosperm is called as my aileron layer। So endosperm की यहाँ पे आपको एक outer layer मिलती है, and this outer layer is called as my aileron layer। अब ये जो आपकी aileron layer आपको जो मिल रही है, which is the outer layer of the endosperm, this is also going to be triploid। सिंपल सी बात है, अगर मेरा endosperm पूरा triploid है तो सब कुछ वहाँ पे triploid मिलेगा मुझे वहाँ पे, right? This is also going to be triploid only। आपको एक और चीज याद रखनी है, it will have a high protein content। This will have high protein content। तो ये याद रख लेना that you have an endosperm and the outer layer of the endosperm is called my aileron layer and this is known to be rich in protein। This is known to be rich in protein। तो इतनी बात इसके अंदर आप याद रखना जो यहाँ पे लिखी हुई है। The outer covering of the endosperm separates the embryo, separates by the embryo by proteinaceous layer called as my aileron layer। बस इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखो। ठीक है,
So now we have this again. We can see the picture of the embryo of the grass. That's a monocot. Same picture आपके यहाँ पे. You can have a look at this again and again. Then we have perisperm. क्या होता है हमारे यहाँ पे? अब जनरली होता क्या है ना कि जब आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, so you have your happening inside the embryo sac के अंदर आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होगा वहां पे. You have a nucleus. Nucleus आप जानते हो, nucleus और my diploid cells. Nucleus जो मेरे होते हैं आपके ओवल के अंदर, these are my diploid cell. इनको भी हम यूज कर लेते हैं. So basically आपका जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो इनको भी कंज्यूम कर लेता है वो. So इनको भी like they are also source of food for the embryo. So here we have the nucleus, and nucleus is consumed after fertilization due to absorption of the food by endosperm and the embryo. तो आपका जो nucleus आपका होता है उसको भी आप कंज्यूम कर लेते हो for the growth of the embryo. Now होता क्या है, कई बार आपका nucleus थोड़ा सा रह जाता है आपके seed के अंदर. Even after the growth of the embryo, you can have some amount of nucleus. So, but in some seeds, remnant of the nucleus are persistent in nature. This residual persistent nucleus is called as my perisperm. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरिस्पर्म. तो अगर थोड़ा बहुत न्यूक्लियस अगर आपका रह जाता है, इवन आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एज माय पेरिस्पर्म. तो एक ये बात आप यहाँ पे याद रखना. Such seeds are called as my perispermic seed, like your black pepper and beet are the example of my perispermic seeds. That is something we have done. तो इतनी बातें हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's jump onto your question solving. ये चीज आप ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हो. Now let's do the main part, that's your question solving. तो question solving हम यहाँ पे ध्यान से करेंगे. So all of you have to again involved over here. देखो, so we have a role of double fertilization in angiosperm is to produce what? आपका double fertilization basically आपके यहाँ पे क्या बना के आपको यहाँ पे दे रहा है. So quickly answer in the chat. A, B, C, D. D आपका यहाँ पे कह रहा है आपको A, B, A and B. C is my cotyledon, B is my zygote, and A is my endosperm. The whole purpose of double fertilization is to produce what? All right, Jalandhar and one more school has answered over here. Anyone else wants to answer this? Yes, it is my option D. Right. So मेरा double fertilization होने के बाद endosperm and zygote मुझे यहाँ पे बन के मिलेगा. Then question number 8. The fertilization occurs in the, आपका fertilization basically आपका कहाँ पे हो रहा होता है? The fertilization will be happening where? So again, the answer here is going to be your embryo sac. जो fertilization आपका यहाँ पे हो रहा होगा, that will be happening inside the embryo sac. Again D. Now, question number 1. In flowering plants, the pollen tube arrives in. आपका pollen tube सबसे पहले कहाँ पे अराइव करता है, या मैं कहूंगा कहाँ पे ये किसको एनकाउंटर करता है सबसे पहले. आप ये सभी देख सकते हो इस क्वेश्चन को. That my pollen tube arrives in. So I have received the answer from Ludhiana, Talwara, and Firozpur, and that is going to be a correct answer. So सबसे पहले वो मेरा एनकाउंटर करेगा, that is my synergate cell, which will ultimately degenerate. ठीक है, याद रखना बाद में सारे सेल्स मतलब एंटीबॉडी सेल भी आपके डिजेनरेट होते ही है. अब ये क्वेश्चन ध्यान से करेंगे हम लोग. If a number of chromosome in the egg is 8, if the number of chromosome in egg is 8, then what is the number of chromosome in endosperm? ऑप्शन डी कह रहे हो आप यहाँ पे. अरे वाह, काफी जल्दी आंसर कर दिया बिना ज्यादा सोचे. गलत है, ऑप्शन डी गलत है. नाउ फिरोजपुर हैज गिवन मी अनदर आंसर, दैट इज योर ऑप्शन ए. नाउ लुधियाना हैज आल्सो गिवन आंसर ए. ये आंसर है, आप फिरोजपुर के बच्चों का आंसर देख के बोल रहे हो या आपने खुद से सॉल्व किया है कि कैसे हुआ? अच्छा, नाउ हैव अ लुक ओवर हियर. एग जो आपका होता है, नाउ टेल मी समथिंग. यू हैव अ एग, assume that this is the egg over here, और एग आपका हमेशा आपका होता है हैप्लॉइड. अगर मैं कह रहा हूं कि आपका अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपके एग के अंदर you have 8 chromosomes, right? So that means your n is equal to 8 over here. हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपके यहाँ पे 8 हैं, राइट? क्योंकि आपका एग तो हमेशा यहाँ पे आपका हैप्लॉइड होगा ना. अब आप ये बात जब जानते हो कि आपका जो एंडोस्पर्म होता है, the endosperm you actually form, endosperm is always going to be your triploid in nature. ये आपका ट्रिपलेट होगा. तो अगर n is equal to 8 है मेरा यहाँ पे, देन आप ट्रिपलेट वैसे बना सकते हो ना. दैट मीन्स 8 plus 8 plus 8. So 8 plus 8 plus 8, that will give me my triploid condition. तब मेरा बनेगा यहाँ पे 3n, which itself means my endosperm has to be having 24 chromosomes. ठीक है, अगर n is equal to मेरा यहाँ पे 8 है, देन आप डायरेक्टली समझ सकते हो दैट मेरा 3n यहाँ पे होना चाहिए, मेरा यहाँ पे 24. इसलिए आपका ऑप्शन ही बनेगा एज अ करेक्ट आंसर. तो पहली बार आपने गलत दिया था, लेकिन बाद में आपने सबने सही कर दिया यहाँ पे आंसर. आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव सॉल्व बाय योरसेल्फ. ठीक है. डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे
क्या इन्वॉल्व करता है, व्हाट डज डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ओवर, तो कौन सा स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही होगा? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ऑप्शन ए कर दिया आप लोगों ने यहाँ पे, ये आपने जल्दी जल्दी कर दिया और जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया। इट हैज टू बी योर ऑप्शन डी, द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय टू स्पर्म ब्रॉट बाय अ सेम पोलन ट्यूब। ये आपका यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही नहीं बनेगा बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है द एग बाय टू में क्या लिखा है, दैट्स रॉन्ग, राइट। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे क्या कर रहा है, द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय टू स्पर्म्स ब्रॉट बाय द सेम पोलन ट्यूब। सेम पोलन ट्यूब आपके यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपके यहाँ पे दोनों मेल गैमेट्स को व्हिच आर फ्यूजिंग विद द एग एंड द सेंट्रल सेल, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। देन आफ्टर दिस यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्गेट। जब आपके मेल गैमेट को डिस्चार्ज किया जाता है आपके इन द सिनर्गेट, देन उनके साथ वहां पे क्या होता है, व्हाट विल हैपन टू देम? All right, so now I have received the answer from Jalandhar and one more school. बस दो ही आंसर, एनीवन एल्स वांट टू आंसर दिस? सो आपके जब मेल गैमेट्स हम रिलीज करते हैं तो फिर उनके साथ वहां पे आपका क्या होगा? यस, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। वन विल फ्यूज विद द एग, एग आपका जाके फ्यूज करेगा एग के साथ, एंड द अदर विल फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियर। सेंट्रल सेल का न्यूक्लियर मतलब मेरा यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर की यहाँ पे बात की जा रही है, तो एक जाके एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा के फ्यूज करेगा आपका यहाँ पे सेंट्रल सेल के न्यूक्लियर के साथ। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बनेगा मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ डबल फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? अगेन यू हैव दिस फोर स्टेटमेंट्स, टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर इन दिस। कौन सा इनमें से स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ज्यादा सही है? राइट, Jalandhar, Talwara and Ludhiana and all other school, that's true. आप सबका आंसर यहाँ पे आपका सही है। डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली मींस व्हाट? यू हैव अ सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आपके यहाँ पे हो रहा है, तभी तो मुझसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आपके यहाँ पे सिंगैमी भी हो रहा है। सिंगैमी मतलब आपका क्या? योर एम्ब्रियो, सॉरी, योर एग विल फ्यूज विद द मेल गैमेट एंड योर मेल गैमेट विल फ्यूज विद योर पोलर न्यूक्लियर, दैट्स व्हाई ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये दो इवेंट्स आपके हो रहे होते हैं इन माय डबल फर्टिलाइजेशन। आप ऑप्शन बी यहाँ पे नहीं बोलोगे बिकॉज वो आपके यहाँ पे सही नहीं है। वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियर आपका हो रहा है यहाँ पे, बट दैट डज नॉट टेल मी अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। वो मुझे बता रहे हैं यहाँ पे कि आपके यहाँ पे एंडोस्पर्म बन रहा है, बट ये जो ऑप्शन डी है मेरा यहाँ पे जो आपके दो टर्म्स रखे गए हैं, दीज टू टर्म्स आर वेरी क्लियर इंडिकेटर्स कि हाँ यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इन दो टर्म्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज द करेक्ट वन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, कौन एग्जिबिट करता है डबल फर्टिलाइजेशन? ए बी सी डी, जल्दी करना, आगे बढ़ते फटाफट इसको करके। यस, यू विल फाइंड, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। अब मुझे कोई ये बता दो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? पेंटाप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका जो एंडोस्पर्म आपको मिलेगा वो कैसा होगा? जलिंदर ने अपना आंसर यहाँ पे दे दिया। आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री विद दैट। यस, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका एंडोस्पर्म जो आपको मिलेगा आपका यहाँ पे, वो आपका हमेशा यहाँ पे हैप्लॉइड ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे आपका गलत है? टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। ओके, मिलिट्री स्कूल लुधियाना ने यहाँ पे आंसर कर दिया है। बाकी लोग भी देख लीजिए, शायद कुछ और भी आंसर हो। वो तो एक कह रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, बट यू कैन फाइंड समथिंग एज आंसर। ऑलराइट, सो ऑल ऑफ यू आर एग्रीइंग विद दिस ऑप्शन ए। फिर देखो यहाँ पे क्या है, When pollen is shed at a two cell stage, double fertilization does not takes place. ये बात आपके यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर दो सेल स्टेज पे अगर आपका पोलन ग्रेन शेड किया गया, so that does not mean कि वहां पे आपका डबल फर्टिलाइजेशन आपका पे नहीं होगा। दैट्स रॉन्ग, राइट? सो यस, ये आपके यहाँ पे सही आंसर है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? सो बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। Vegetative cell is larger than generative cell, that's true. Pollen grain in some plant remain viable for months, that's also true. And intine is made up of my cellulose and pectin, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। So all remaining statement are true, but पहली statement आपके यहाँ पे गलत है। Then through which cell of the embryo sac does the pollen tube enters the embryo sac?
कौन से सेल को तोड़ के हमारे यहाँ पे पोलन ट्यूब आपके यहाँ पे जा रहा होता है? बहुत सिंपल आंसर आपका इसके यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी टू आप डीजेनरेटेड सेनेगेट सेल के साथ. So you are going to degenerate the Seagate cells and then you will be moving forward into the embryo sac. Option C बनेगा यहाँ पे as a correct answer. True. Then we have question number 79. Generative cell was destroyed by a laser by a normal pollen tube. By a normal pollen tube was still performing. Normal pollen tube was still formed because. तो यहाँ पे बताओ क्या होगा इसके अंदर आंसर. आपने जनरेटिव सेल को आपने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया और स्टिल आपके यहाँ पे पोलन ट्यूब आपके यहाँ पे बन के मिला. सो इसका रीजन आपके यहाँ पे क्या हो सकता है? क्वेश्चन को आप यहाँ पे समझो कि आपके जेनेटिव सेल को हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है. इवन देन द नॉर्मल पोलन ट्यूब इज बीन फॉर्म्ड. सो व्हाई दैट हैज हैपेंड? ऑलराइट, Jalandhar has answered. Anyone else want to answer this? Sangruru is also saying option A यहाँ पे. Talwara, Ludhiana and Firozpur. I think Firozpur का आंसर आना बाकी है, but yes, I think most of you are agreeing with option A. So option A आपके यहाँ पे ये कह रहा है कि पोलन ट्यूब आपका इसलिए बना because vegetative cell is not damaged, and that's true. आपका वेजिटेटिव सेल जो आपका यहाँ पे है आपका, वो आपका डैमेज नहीं हुआ है, और क्योंकि आपका ये सेल आपके यहाँ पे डैमेज हुआ ही नहीं है, देन आई कैन क्लियरली एक्सपेक्ट कि आपका वहाँ पे इजीली आपका पोलन ट्यूब आपका बनेगा, बिकॉज पोलन ट्यूब आपका बन कहाँ से रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल. सो दैट इज व्हाई यस, ये आंसर आपका यहाँ पे सही है. दिस ऑप्शन ही बिकम्स अ करेक्ट आंसर. जब आपने जेनेटिव सेल को खत्म कर दिया तो वो तो आपके मेल गैमेट्स बनाने वाला आपका सेल था ना, वो तो गया, वो खत्म हो गया, बट यू कैन स्टिल फाइंड अ पोलन ट्यूब कैन बी फॉर्म बिकॉज यू स्टिल हैव द vegetative cell present over there. Okay, so option A becomes my correct answer. बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हैं. They have no relation with this what is happening with the generative cell. उसका कोई रिलेशन वहाँ पे आ नहीं रहा. हाँ, ये करके बताओ. टोटल नंबर ऑफ meiotic division required for formation of 100 zygotes और 100 grains. बताओ 100 zygote बनाने के लिए मुझे कितने meiotic division यहाँ पे करने पड़ेंगे? You have to do this, थोड़ा thoroughly करना पड़ेगा तुम्हें. कर लिया thoroughly? So Firozpur is saying option A, Jalandhar is saying option D, Sangrur is saying option A, and Ludhiana is saying option A. कि 100 zygote है सर तो 100 meiosis कर दो, that will be enough. चलो इसे करते हैं हम लोग यहाँ पे. कैसे आपने आंसर निकाला? आपने तो डायरेक्टली आंसर निकाल दिया. अब मैं थोड़ा ऐसे करके बताता हूँ आपको यहाँ पे how that has to be done. We still have like, we'll just take 3-4 minutes and then we'll wrap this up. ठीक है, I know it's your time. So 100 zygotes होते हैं ना मेरे पास यहाँ पे, तो 100 zygotes मुझे कैसे बनाऊंगा मैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर मुझे 100 zygotes बनाने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक 100 पोलन ग्रेन्स. तो मुझे पहले बनाने पड़ेंगे मेरे यहाँ पे 100 पोलन ग्रेन्स मुझे यहाँ पे बनाने पड़ेंगे. तो अगर मुझे बनाने हैं, सो याद रखना, आई हैव टू मेक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू हैव 100 पोलन ग्रेन्स. ठीक है, अगर मुझे 100 पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बनाने हैं तो ये मैं कैसे बनाऊंगा? सो याद रखना, you have your microspore mother cell. माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका करता है, वो आपका डिप्लॉइड सेल होता है, और ये आपका करता है आपका यहाँ पे मियोसिस. तो जब ये आपका मियोसिस करता है तब जाके आपको मिलता है आपके 4 माइक्रोस्पोर, राइट? सो दैट्स व्हेन यू विल गेट योर 4 माइक्रोस्पोर आर बीन फॉर्म्ड. और ये 4 माइक्रोस्पोर जो आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं, दे ओनली टर्न इनटू द पोलन ग्रेन, राइट? तो जो 4 माइक्रोस्पोर जो मेरे यहाँ बनेंगे, दे विल ओनली टर्न इनटू माय पोलन ग्रेन, दे विल ओनली टर्न इनटू द पोलन ग्रेन. तो यहाँ पे हुआ क्या? बेसिकली हमने यहाँ पे एक बार मियोसिस किया, और जब मैंने यहाँ पे एक बार मियोसिस किया तो मुझे यहाँ पे 4 पोलन ग्रेन मुझे यहाँ पे मिले. तो रूल यहाँ पे आपको ये कहेगा, लाइक सिंपल सा मैथ से आपका यहाँ पे, दैट व्हेन आई डू द वन टाइम मियोसिस आई गेट 4 पोलन ग्रेन्स. मुझे यहाँ पे 4 पोलन ग्रेन मुझे यहाँ पे मिलते हैं. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं चाहूंगा कि मुझे चाहिए मेरे 100 पोलन ग्रेन, सो आई हैव टू डू 25 टाइम्स मियोसिस. 25 टाइम्स मियोसिस मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा. समझो इस बात को कि मुझे 25 बार करना पड़ेगा मियोसिस, तब जाके मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे 100 पोलन ग्रेन. तो पहले तो आप ये बात दिमाग में बिठा लो दैट यू हैव टू डू दिस फॉर 25 टाइम्स, राइट? अब पोलन ग्रेन तो मैंने यहाँ पे बना लिया. आई ऑल्सो नीड टू हैव 100 एग्स. आई ऑल्सो नीड टू फॉर्म. तो पोलन ग्रेन तो मेरे यहाँ पे बन गया, बट आई ऑल्सो नीड टू फॉर्म 100 एग्स मुझे चाहिए ना, या मैं कहूंगा मुझे, आई कैन से आई नीड टू हैव एटलीस्ट, आई नीड टू हैव 100 एम्ब्रियो सैक्स. ठीक है, आई नीड टू हैव 100 एम्ब्रियो सैक व्हिच विल हैव 100 एग्स, राइट? तो मैं यहाँ पे कैसे कहूँ, आई नीड टू हैव 100 एम्ब्रियो सैक्स, embryo sac which will ultimately have the 100 eggs, जिसके अंदर मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे 100 eggs. तो 100 eggs या 100 embryo sac मैं कैसे बना सकता हूँ?
पोलन ग्रेन कैसे बन रहे वो हमने यहाँ पे देख लिया. यू नीड टू हैव 25 माइटोमियोसिस हमें यहाँ पे लग जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन और माय एग फॉर्मेशन. तो आपका जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, व्हेन यू हैव अ मेगास्पोर मदर सेल, जब आपका मेगास्पोर मदर सेल आपके यहाँ पे होगा, सो व्हाट इट विल डू, इट विल अंडरटेक द मियोसिस. ये भी आपका डिप्लॉइड सेल आपके यहाँ पे होता है. अब जब ये मियोसिस करता है तो याद रखना, व्हेन इट डज द मियोसिस आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे 4 मेगास्पोर. यू विल फाइंड 4 मेगास्पोर आर गेटिंग फॉर्म्ड. लेकिन जब मेरे यहाँ पे 4 मेगास्पोर मुझे यहाँ पे मिलते हैं, सो आई हैव फॉर्म्ड ओवर हियर माय मेगास्पोर. मैंने यहाँ पे मेरे 4 मेगास्पोर मेरे यहाँ पे बना लिया है. बट आपको ये बात भी तो याद रखनी है कि 4 में से 3 तो आपके हो जाते हैं यहाँ पे डीजेनरेट. सो आउट ऑफ दिस 4 आई विल फाइंड 3 of them will undergo degeneration. तो बचा कितना, एक बचा आपका यहाँ पे. And the single megaspore will give rise to embryo sac, will give rise to a single embryo sac. और उस embryo sac के अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा single egg, right? So that means what, कि जब मैं एक बार meiosis करूंगा, जब मैं megaspore mother cell लेके when I do the one time meiosis, when I do my one time meiosis, तो मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे single egg. So one time meiosis will give me single egg. So if I have to form 100 eggs, then मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे 100 time meiosis, right? तो मुझे पता चल गया कि मुझे egg बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे यहाँ पे 100 time meiosis, right? So 100 egg के लिए मुझे लगेंगे यहाँ पे मेरे 100 meiosis, और मुझे वहां पे चाहिए था 100 pollen grain के लिए मुझे चाहिए था मेरा वहां पे 25 time meiosis. So that means 25 plus 100. So 25 वहां पे 25 meiosis for making the pollen grain and 100 meiosis for my egg formation. So total मेरा जो यहाँ पे नंबर बन के आएगा, that is going to be my 125. My bad, कुछ नहीं बेटा, आपने किया ही नहीं था वो, आपने डायरेक्टली ही आंसर निकाल लिया था. So that is why over here the answer is going to be my 125. आंसर तो चलो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ क्या ये बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे कि आपने कैसे यहाँ पे अपना कैलकुलेट किया. तो 25 टाइम्स अगर समझ आ रहा है देन प्लीज राइट अ यस ओवर देयर. 25 टाइम्स यू डू द meiosis over here to make your 100 pollen grains, और उसी तरीके से यू विल बी डूइंग माय 100 टाइम meiosis to make the 100 eggs. क्योंकि होता क्या ना यहाँ पे कि मेगास्पोर मदर सेल में से आपके 4 तो बनते हैं मेगास्पोर, बट 3 तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं. So one of them will be used to form a one embryo sac. So that is why this will be the answer. So your answer has to be your 125 eggs over there. ठीक है, सॉरी 125 meiosis will be required over here. So ये बनेगा आपका यहाँ पे आंसर. Alright, so that's what we have done. आपका यहाँ पे टाइम भी हो चुका है. बाकी क्वेश्चंस यू कैन हैव अ लुक एट फ्रॉम योर साइड, ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा. सो यू कैन हैव अ लुक एट दोस क्वेश्चंस, और एक बार हम इन्हें बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, राइट? So that is something we have done. I would strongly suggest you to solve as many questions as possible. Repetitive लग सकता है कई बार क्वेश्चन सॉल्व करना, but that will create a strong imprint in your head कि आपको आता है वो चीज अच्छे से. So please do that, right? So yeah, that's what we have done. So let's wrap this up. अगर किसी का कोई सवाल है तो अपना सवाल यहाँ पे पूछ सकता है. If anyone has any kind of question right now, they can ask their question. Or if you have no question, then yes, this is where your lecture ends. We'll catch you again on Monday.